वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दियामिर भाषा डैम का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डैम पर तामीराती काम का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म को डैम पर तामीराती काम से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई और मंसूबे को वक्त से पहले मुकम्मल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन वाबडा को यह हिदायत सामने आई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब करें, आपको बराह रास्त लिए चलते। Very huge and honest task we have to undertake. And thank you very much for your time and your concern. I'm very happy to state that this project was launched by former Prime Minister Shehbaz Sharif back in 2016-17, and then former Prime Minister Shahid added on to it in a wonderful way that this project is now on the ground and it is coming up as best as possible. Jan Muzammil, Chairman Wabda, I used to name him as a live wire because I had a short spell of interaction with him and some of the problems were resolved very speedily. I'm sure all of you are going to team your efforts and complete this project as early as possible. Obviously, I can understand gigantic tasks ahead of you. You know, this terrain and weather, access to the area is not easy. And then, of course, financial matters also equally important, if not more. I have gone through these slides and I'm satisfied that you are able to raise funds from international market through Eurobond and Sukuk and other instruments. But then this is, for the time being, for the dam site. I think it is equally important to start thinking of the powerhouse. And there you earn money, not on dam. Dam will help Pakistan's economy immensely, irrigate our lands and have other very important aspects attached to it. Controls sedimentation and flash floods, etc. This is extremely important for our economy. And above all is irrigating our lands and providing opportunity to grow more agricultural produce and make Pakistan prosperous and progressive. But then what about the powerhouse? I would suggest that since it carries profits, so international investors should be encouraged to come forward and bid for the powerhouse so that we can start this powerhouse in tandem with the dam site. And I would suggest that the best bet would be cooperate with CPAC if possible, or seek financial support from Exim Bank China, and then of course explore other potential investors, but then do it very speedily, because unless we start power generating project, this project would be incomplete in every sense of the word. So I would be very grateful if Chairman Wabda is able to look into this aspect quickly, and whatever you need from the federal government will be there to support you. I'm not here to make any political speech today because we have enough other ample opportunities to say the truth and expose, unfortunately, what has happened in the last 3.5 years. But I must say and appreciate this teamwork, which is doing a wonderful job. It's a Chinese, it's a combination of Chinese company and FWO.
I'm sure it's a wonderful combination, and this combination will certainly deliver this project on time. But I will still insist and persist that please go into the timelines again and see where we can cut corners, and if we can advance this date from 2029 to, let's say, 2026 or 2027, it will be a miracle we would have been able to achieve. And this is possible. Nothing is impossible in this world, provided we put our act together and move forward in unison. I'm sure you will be able to find space to advance this project by at least 2 years. मैं आखिर में आप सबका, चूँकि यहाँ पर कुछ फॉरेनर्स बैठे थे, मुझे अंग्रेज़ी में बात करनी पड़ी, लेकिन मुझे उर्दू में बात करनी चाहिए थी, मगर चूँकि उनको भी कुछ समझ में आ जाए कि मैं क्या कह रहा था, तो मैंने कुछ अंग्रेज़ी में बात की. मैं आप सबका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आप बड़ी मेहनत से इस मंसूबे के लिए काम कर रहे हैं. ये मंसूबा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी PMLN की हुकूमत मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में इस मंसूबे का आगाज़ किया गया, और पहली किस्त में जो लैंड एक्वायर करनी थी उसके लिए फ़ंड्स PMLN की हुकूमत ने जारी किए, और उसके नतीजे में लैंड एक्वायर की गई. मुझे इल्म है और मुझे बताया भी है जब वहाँ आ रहे थे कि उस एक्विजिशन में ख़ासे प्रॉब्लम्स थे और उसमें काफ़ी टीडियस इश्यूज़ थे जिनको बड़ी अच्छे तरीके से रिजॉल्व किया गया, और फिर शाहिद अब्बासी साहब ने इस सारे प्रोसेस को पूरी इसकी सपोर्ट की और उसको ताकत पहुंचाई. और उसके बाद अब ऑन ग्राउंड काम शुरू हो चुका है. यकीनन जिस तरह आपने बताया कि यहाँ पर 9 शहादतें हुई हैं और 72 लोग कोविड की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए, तो इन तमाम मुश्किलात और आफात के बावजूद आज यहाँ पर ज़िंदगी नज़र आती है, तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी खुश आइंद बात है. और इस मंसूबे को हम अगर अब बड़ी यानी पूरी इज्तिमाई क़ुव्वत और इज्तिमाई बसीरत के साथ आगे लेकर चल सकें, तो एक बहुत एक शाहकार होगा, पाकिस्तान के तारीख़ में एक माइलस्टोन होगा. डैम यकीनन पाकिस्तान की ज़िंदगी को तवानाई बख्शने के लिए बहुत एक अहम एक मंसूबा है. और जिस तरह आपने तफसील में बताया, मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि किस तरह 125-30 मिलियन एकड़ फीट जो पानी यहाँ से गुज़रता है सालाना, उसमें से हम बमुश्किल 25-30 मिलियन एकड़ फीट बचा पा रहे हैं. इससे बड़ी इस कौम के साथ ज़्यादती क्या हो सकती है. और इस हमाम में हम सब नंगे हैं. 75 साल में यही कुछ होता रहा, चाहे वो सियासी जमहूरी हुकूमतें थीं या डिक्टेटरशिप थी. मैं समझता हूँ कि माजी में जाए बग़ैर मगर माजी से सबक हासिल करने के साथ अगर हम इस एक कुदरत का जो तोहफ़ा है, इनाम है, इस पानी को अगर हम मुमकिन हद तक हम ज़ाया होने से बचा लें, जो समुंदर में गर्क हो जाता है, तो एक बहुत बड़ी एक कामयाबी होगी हमारी. और इसके लिए ये डैम एक बहुत एक बड़ा अहम रोल अदा करेगा. नीचे दासू डैम जो है वो भी इंशाअल्लाह, वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर स्टोरेज नहीं है. इट इज़ जस्ट जनरेशन थ्रू रन ऑफ द वाटर इन द रिवर. तो ये हमें ये कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी न सिर्फ हमें बहुत पाकिस्तान की ज़िंदगी में एक तवानाई लेके आएगी, बल्कि तरबेला डैम को भी सेडिमेंटेशन से बचा के, जिस तरह आपने बताया कि 35 साल उसकी उम्र में इजाफा होगा. लेकिन दिस इज़ नॉट इनफ. आपको ये जो कैस्केडिंग जो है, इसमें आपको मज़ीद हम गोता जन हों. यकीनन वक्त लगेगा, वसाइल दरकार हैं, हमारे पास वसाइल नहीं हैं. मैं माजी में जिस तरह मैंने कहा नहीं झांकना चाहता. पिछले
छः दिन से जब से मैं अल्लाह ताला ने मुझे इस मुल्क का खादम चुना है, मैं दिन रात जब मैं लेता हूँ प्रेजेंटेशन, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की है, चाहे वो पावर की है, चाहे वो पेट्रोलियम की है, चाहे वो यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से हमें अपने इन 3.25 सालों को ज़ाया किया। एक मिसाल है कि हमारी ये हाइडल पावर तो अभी नहीं आएगी, वो तो अब जब ग्लेशियर नीचे आएंगे, बर्फ़ें पिघलेंगी, तो फिर ये आपका 6-7 हज़ार मेगावाट जो है वो इंशाल्लाह जनरेट होगा। लेकिन इस वक्त जो आपकी नॉन हाइडल पावर जो अवेलेबल है, इट इज़ एट स्टैंड स्टिल। आई मीन लार्ज कैपेसिटीज, थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट्स। इसलिए नहीं कि हमारे पास अपने कैपेसिटी नहीं, इसलिए कि ना वाफर तेल है, ना वाफर गैस है। इससे बड़ी इनकॉम्पिटेंस और इससे बड़ा जुल्म और ज़्यादती इस कौम के साथ क्या हो सकती है। मुझे इस बारे में और मौके होंगे, मैं कहूँगा, बताऊँगा कौम को, और हक़ाइक़ बतानी है, झूठ नहीं बोलना कौम के सामने। मैं उस दिन इस मुल्क का खादम नहीं हूँगा जिस दिन खुदा ने मुझसे, मेरे मुँह से जो कौम के जो हक़ाइक़ हैं, अच्छे या बुरे, वो मैंने उनको ट्विस्ट करने की कोशिश की और उनको एक गलत रंग देने की कोशिश की। ना मेरे ये ख़मीर में है, ना मैंने ये सीखा, ना ये काम करूँगा इंशाअल्लाह। अच्छी बातें भी हक़ाइक़ के ज़रिए आएंगी और खुदा न खास्ता कोई मुश्किल बातें, ख़राब बातें भी हक़ाइक़ के साथ आएंगी। आखिर में जो सोशल फ्रंट पे जो काम आप कर रहे हैं वो यकीनन वो बड़ा अच्छा है। आपने कैडेट कॉलेज भी बनाया चलास में और आर्मी पब्लिक स्कूल भी बनाया आपने। जो वहाँ पर कमी मुझे आई जनरल साहब, वो हस्पताल की। यू मस्ट हैव अ प्रॉपर हॉस्पिटल इन चलास, जो न सिर्फ इस पूरे ख़ित्ते के लिए, वो हमारे मरीज़ माँओं, बहनों और बेटों के लिए एक मैं आज भी जानता हूँ यहाँ पर गिलगित में द फर्स्ट स्कैनिंग मशीन, MRI मशीन वॉज डोनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। मैं जब खादम था पंजाब का, तो मैंने गिलगित में वो मशीन दी, वगरना स्कैन करने के लिए लोग रावलपिंडी जाते थे। दिस इज़ अ फैक्ट, हार्श एंड हार्ड एज इट इज़, बट दिस इज़ अ फैक्ट। मगर इतना ये अरबों खरबों का आप ये मनसूबा बना रहे हैं, तो यहाँ पर अगर प्रॉपर अस्पताल नहीं है, छोटी मोटी डिस्पेंसरी इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द एरिया। यहाँ पर जब आगे आप चलेंगे तो हज़ारों इंजीनियर्स आएंगे यहाँ पर, अपना वर्कर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनके लिए आपने एक अस्पताल अगर प्रॉपर ना दिया जो कि इलाके के लोगों के लिए भी काम आए और यहाँ के इस मंसूबे के लिए भी काम आए, तो यहाँ पर आप उसकी स्टडी कर लीजिए कि वहाँ पर 200 बेड का अस्पताल चाहिए, फुली इक्विप्ड एंड रन बाय एक्सपर्ट्स। उनको ज़ाहिर इट्स ईजी सेड देन डन, इस जगह पर रहना कोई आसान काम तो नहीं है, लेकिन उसके लिए सारी हम तदाबीर सोचेंगे। तो आप मुझे फिल फॉर बताइएगा कि यहाँ पर 200 बेड का, 150 बेड का, 300 बेड का अस्पताल, यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं और उनके ऑफिसर्स बैठे हैं, मिल के मशवरा करके विदिन 1 वीक प्लीज़ कम टू मी एंड लेट मी नो कि ये कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह विल फंड दिस हॉस्पिटल फॉर नॉट ओनली फॉर दिस प्रोजेक्ट, फॉर दिस एंटायर एरिया। हमारे गरीब बच्चों, बुज़ुर्गों, जवानों के लिए, माँओं के लिए, यतीमों के लिए, और ये फ्री अस्पताल होगा, फ्री अद्वियात और फ्री इलाज यहाँ पर इंशाल्लाह होगा। आखिरी बात, आपने बाबू शाह टॉप की टनल की बात की, ये यकीनन उसका बड़ा फ़ायदा होगा और ट्रैफिक जो है जो चलती है वो आप उसको डाइवर्ट करेंगे, और टनल के ज़रिए आप सारा साल जब बर्फ़ें में पड़ी होंगी तो टनल के ज़रिए आप अपनी ट्रांसपोर्ट, आप इक्विपमेंट को आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, लोगों को करेंगे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी क्रूशल प्रोजेक्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हाईलाइटिंग दिस इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द इंटायर पैराफिनेलिया। तो उसके लिए मैं इन प्रिंसिपल ऐलान करता हूँ कि हम ये टनल बनाएंगे। 12 किलोमीटर की है, 13 किलोमीटर की है। उसके लिए आप स्टडी तैयार करें, इंशाअल्लाह इस टनल को हम इंटीग्रल पार्ट इसका हिस्सा बनाएंगे। उससे इस मंसूबे के लिए बेपनाह सहूलत होगी। जो आम ट्रैफिक है वो दूसरे रास्ते जाएगी, और जब सड़कें बंद होती हैं मौसम में, वो टनल के ज़रिए आप आएंगे। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशल आई थिंक प्रोजेक्ट। इसको आप इंटीग्रल पार्ट इसका हिस्सा बनाएं और मैं समझता हूँ कि उसका बहुत फ़ायदा होगा। इन अल्फाज के साथ
मैं आप सबका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। जो जवान अफसर यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए मामूर हैं, उनका भी, इंजीनियर्स का, कंसल्टेंट्स का, और जो टीम है मेंबर्स वापडा चेयरमैन के साथ, और जो हमारी चीफ सेक्रेटरी हैं और पुलिस के आईजी हैं और उनकी टीम, आई थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर हमारे गिलगित बल्तिस्तान के एक मेंबर भी बैठे हैं असेंबली के, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर प्रोवाइडिंग पॉलिटिकल सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू, पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ डैम पर तामीराती काम का जायज़ा लेने के बाद गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने